तो फर्स्ट टाइम थोड़ी गड़बड़ हुई। मैंने जो मैथ्स का एक क्वेश्चन था वो बहुत लेंदी था और मैं वही करने में लग गई, तो उसमें मेरा लगभग आधा घंटा चला गया उसी में। सो उसके बाद मुझे लगा कि अभी मैथ्स नहीं करना चाहिए। ड्राइंग देखा मैंने, तो उस फर्स्ट अटेम्प्ट में तो पोर्ट्रेट आया था, वो लड़की थी। तो उसमें मेरा बहुत टाइम चला गया वो करने में भी। तो उस टाइम ना हमें स्विच करना आना चाहिए। Hi guys, welcome or welcome back to Sketch School of Art and Creativity once again, and this is the episode 3 video of our conversation with JBR toppers from SSAC. So in the past 2 episodes we talked about a lot of things. I hope you have seen the video. If you haven't, then please see those videos. Link will be in the description box below. In episode 1 we talked about how much time is required for the preparation of JBR examination, what you should expect, and then we talked about the importance of online coaching. In episode 2, we talked about the preparation strategy which the students have followed to score above 99 percentile, and we also talked about the challenges that they faced while the preparation of the examination. And in this video, I think this is going to be the most important video, and last moment things, I think it really changes the game for a lot of students. So we will talk about that, what was their exam day experience, right? What are the things that you should plan out ahead while you go in the examination. So it's going to be a very utterly important video. Don't skip this video in any part. Answer, like listen to their answers carefully, because if you really want to become the topper, even these students have already contacted the toppers of 2022 batch, and they have listened to their story. So every time when students come to us, we make sure, especially while the examination is near, we make sure that the students interact with the last year toppers from SSAC, of course, so that they get an idea that what are the do's and don'ts. And sometimes these do's and don'ts are really a lifesaver. So please watch this video till the end. I think that you're going to learn so much from this video, and don't forget to subscribe to the channel in case you like the video. So first, please watch the video, and if you think that you really want to see more videos from our side, then don't forget to click on the subscribe button and also press the bell icon to get the latest updates instantly. Okay, so now without much introduction, let us get started with the video. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, बहुत बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं रिगार्डिंग द एग्जाम डे एक्सपीरियंस। इसके बाद हम सिंपल टिप्स वगैरह के बारे में बात करेंगे और वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है? तो एग्जाम डे एक्सपीरियंस बताओ अपना, कि जब आप एग्जाम में गए तो ऐसा क्या था जो मतलब आप शेयर करना चाहोगे, स्पेशली बिकॉज ऑन द एग्जाम डे देयर आर मेनी मेनी थिंग्स। आप जब आपने एग्जाम नहीं दिया था वो स्टेज सोचो। मैम, जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए गई थी तो उस बाद मैंने मतलब लास्ट डे तक मैंने पढ़ाई की थी, और मैं बहुत टेंशन में थी कि मेरा एग्जाम कैसे जाएगा, वो सब कुछ। बट जब मैं पेपर के लिए गई और जब मेरा पेपर स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट टाइम थोड़ी गड़बड़ हुई। मैंने जो मैथ्स का एक क्वेश्चन था वो बहुत लेंदी था और मैं वही करने में लग गई, तो उसमें मेरा लगभग आधा घंटा चला गया उसी में। सो उसके बाद मुझे लगा कि अभी मैथ्स नहीं करना चाहिए। ड्राइंग देखा मैंने, तो उस फर्स्ट अटेम्प्ट में तो पोर्ट्रेट आया था, वो लड़की थी। तो उसमें मेरा बहुत टाइम चला गया वो करने में भी। तो उस टाइम ना हमें स्विच करना आना चाहिए कि नहीं, अभी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि अभी इतना टाइम हो गया है तो अब कैसे मैनेज करेंगे। हमारा 100% देने का काम होता है, वो हमें करना चाहिए। तो मैंने वो पोर्ट्रेट कर दिया। फिर सब कुछ करने के बाद मैंने सबसे लास्ट में मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ना मुझे मेरे हिसाब से तो मैथ्स लेंदी आया था, ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी मैं। बट जब मैं सेकंड पेपर के लिए गई तब मैंने सोच के रखा था कि नहीं, अभी टेंशन नहीं लेना है, फ्री रहना है। अभी अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो उससे जल्दी से स्विच होना है उस क्वेश्चन से, मतलब ज्यादा देर उस क्वेश्चन को नहीं देना है। तो मैंने ऐसे मतलब मेरी इशिदा से ही बात हुई थी, तो उसने मुझे बताया था कि इतने ऐसे नहीं होता है कि मैथ्स में 25 क्वेश्चन है तो हमें 25 क्वेश्चन ही सॉल्व कर देने हैं। तो उसने मुझे बताया था कि जैसे उसने पहले बोला कि 40 मार्क्स आए तो भी गुड स्कोर है वो जेई में। तो मैंने मैथ्स में ना लगभग
9 से 8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो उसके बाद में मैंने एप्टीट्यूड सॉल्व किया था, और उसके बाद में ड्राइंग। तो जो मैथ्स के सर थे हमारे कोचिंग के, तो उन्होंने बताया था कि लगभग 99 पॉइंट मतलब समथिंग परसेंटाइल चाहिए। तो हमें जो हमारे टोटल क्वेश्चंस होते हैं उसमें लगभग 40 से 45 तक क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, मतलब एप्टीट्यूड और मैथ्स मिला के। तो मैंने बस वही स्ट्रैटेजी रखी, और मतलब जब मैं सेकेंड अटेम्प्ट के लिए गई थी तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री थी, और मैंने सोचा था कि नहीं, मैं करूंगी, अच्छा ही करूंगी। और बस इतना ही, खुद पे विश्वास रखा था कि मैं करके ही जाऊंगी, मुझे करना ही है। तो ये खुद पे बिलीव रखना चाहिए कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, और मुझे टेंशन भी नहीं लेना है, और माइंड रिलैक्स रखना चाहिए जब वहाँ पे एग्जाम होती है तब। मैम मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारी पढ़ाई में जो कंटिन्यूटी होती है वो रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक ऐसा नहीं करना चाहिए कि अरे एक दिन पढ़ लिया, अभी हफ्ता में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, हर दिन थोड़ा 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 पढ़ना चाहिए। और मैंने पर्सनली किया था कि मैंने एक्चुअली 12th में ज्वाइन किया था। सो जैसे क्लासेस होती थी और जैसे होमवर्क वगैरह देते थे तो वो मैं कंटिन्यूअसली करता था, और पूरा पूरा साल कंटिन्यूअसली किया मैम। और बस एग्जाम के एक दिन पहले बुक रख दी। अभी तो पढ़ना ही नहीं, अभी पूरा साल, अभी सपोज पूरा साल आपने नहीं पढ़ा तो एक दिन में क्या ही पढ़ लोगे, ऐसा मुझे ऐसा लगा। जो भी आप पूरा साल में करोगे, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि लास्ट डे में सब कुछ मग अप करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने पढ़ा है पहले से उसे ही बस अच्छे से याद रखना है, और माइंड को शांत रखना है मैम पेपर देने के टाइम पे। ऐसा नहीं कि अरे, मतलब मेरे साथ हुआ था मैम कि मेरी एक पेंसिल थी, लाइक कलर पेंसिल, उसकी निब टूटे जा रही थी मैम, और मेरी कलरिंग बाकी थी, और लाइक 15 मिनट बाकी थे। वो एक बहुत बड़ी पैनिक सिचुएशन थी मैम कि अभी पेंसिल शार्प करे जा रहा हूँ मैं और उसकी निब टूटे जा रही है। ऐसी सिचुएशन में भी पैनिक नहीं करना चाहिए मैम। मतलब कुछ भी पेपर में कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपने पैनिक नहीं होना है। अगर आप पैनिक कर गए तो बस गेम ओवर। लाइक फिर आप पैनिक में गलती कर दोगे और फिर आपकी एग्जाम चली जाएगी। लाइक आपने ऐसा सोचना, ऐसा माइंडसेट रखना ही चाहिए कि दिस इज, मतलब आपका यही एक चांस है और आपको इसमें ही अच्छे से करना है। बस पैनिक नहीं करना है एग्जाम देते वक्त। और रही बात मैम स्लीप की, तो वैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रात में पढ़ना चाहिए, रात में पढ़े तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, और ये सब फलाना ढमकाना बहुत लोग बोलते हैं। पर मेरा पर्सनली नहीं था मैम। मैं पूरे 8 से 9 घंटे की स्लीप लेता था मैम, और क्लासेस भी जाता था, और टेस्ट भी देता था, क्लासेस भी अटेंड करता था। सब कुछ साथ में करना पॉसिबल है मैम, ऐसे नहीं है कि नहीं कर सकते। सब कुछ साथ में करना चाहिए। और वैसे भी अभी आर्किटेक्चर में टाइम मैनेजमेंट तो एक फैक्टर है ही। जो मैंने आपके ही वीडियो में से मैंने देखा था कि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आर्किटेक्चर में। अगर उसकी आप प्रैक्टिस पहले से ही करते हो, लाइक 11th 12th से ही, कि आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर लेते हो, सब कुछ चीज़ों को टाइम दे देते हो, लाइक पीसीएम की स्टडीज को भी टाइम दे दिया, थोड़ी बहुत आर्किटेक्चर की भी प्रैक्टिस कर ली, तो बाद में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगी। तो बस पैनिक नहीं करना है और अच्छे से नींद लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक रात मतलब सो गए और फिर दूसरे दिन लेट उठ गए, ऐसा नहीं, कंटिन्यू साइकिल में रखना चाहिए। और बस फिर एग्जाम क्रैक करना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम लोगों को शायद पता भी ना हो, अभी मैं रिजल्ट्स मैंने अपलोड किया वेबसाइट पे। तो जेईबीआर के जो रिजल्ट्स है उसमें 1/3 बच्चों के टॉप पर है, मतलब 1/3 बच्चे उनके 98 परसेंटाइल से ऊपर आए हैं। मतलब जितने बच्चों ने भी एसएससी में प्रिपेयर किया, तो मतलब अराउंड 152 बच्चों ने प्रिपरेशन की थी हमारे साथ, उसमें 47 या 48 बच्चों के आए हैं टॉपर 98 परसेंटाइल से ऊपर, विच इज ऑलमोस्ट 1/3। ठीक है, अब तुम्हें क्या लगता है सारे बच्चे 152 बच्चे आते थे क्लास में? ऑफकोर्स नहीं आते थे। ठीक, कितने आते होंगे? 75 आते होंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, या 50 भी आते होंगे, क्या पता। तो जितने क्लास में आते थे रेगुलरली कंसिस्टेंटली, उन सबके टॉप मार्क्स हैं। तो अगर आप कंसिस्टेंसी पे अपना ध्यान दे देते हो ना, बाकी सब मैं बोल सकती हूँ कि आप छोड़ दो, टीचर्स पे हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बस क्लास में आ जाओ। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेफिनेटली यश ने 100% करी थी, एंड रिजल्ट तो सबके सामने है। वेरी गुड। चलो स्नेहा से बोलते। स्नेहा, क्या बताना चाहोगे? मैम आई थिंक रिलैक्स करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप जल्दी सो गए, पहले वाले दिन तो बुक्स छोड़ ही दो, कुछ नहीं होने वाला, लास्ट डे पढ़ने से छोड़ दो, रिलैक्स करो,
पूरी स्लीप ले लो, सुबह उठो, कुछ खा के जाओ। मैंने बहुत गलती की थी। मेरे को जब एंग्जाइटी होती है, थोड़ी सी भी एंग्जाइटी होती है ना एग्जाम की, मैं एग्जाम देने जा रही हूँ तो मैं कुछ खाती नहीं हूँ, मेरे को एंग्शियस फील होता है क्योंकि, बट खाना चाहिए, उससे थोड़ी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, काम डाउन हो जाते हो, जाके बैठो। ये मत सोचो कि डू और डाई सिचुएशन है, उस टाइम ना कुछ दिमाग ही नहीं चलेगा अगर आप ये सोचोगे तो। उस टाइम बस सोचो कि क्या आपका स्ट्रॉन्ग सूट है ड्राइंग, मैथ्स और एप्टीट्यूड में से, क्या आपको पहले करना है। जो आपसे जल्दी हो जाती है ना वो पहले करके खत्म करो, कॉन्फिडेंस मिलेगा। जैसे मेरे लिए एप्टीट्यूड था कि उसमें ना अगर आता है नॉलेज बेस तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, तो उसको फटाफट फटाफट कर करके साइड कर दिया। ये पता है कि इतना पार्ट हो गया। टाइम डिवाइड करना बहुत जरूरी है वहां पे, कि इतना टाइम मैं इसको दूंगी, इतना टाइम इसको और इतना टाइम उसको, उतना ही दो। कोशिश करो जितना टाइम अलॉट किया था मन में उससे कम में ही हो जाए। उसके बाद मैंने मैथ्स की थी और मैंने सोचा था मैथ्स में इतना टाइम निकलने के बाद मैं मैथ्स को और टाइम नहीं दूंगी, क्योंकि उसमें ना फिर क्या होता है ड्राइंग का टाइम कट जाता है, और ड्राइंग में लास्ट में कलरिंग शेडिंग छूट गई ना तो उसके बहुत मार्क्स कटते हैं, और ड्राइंग को फिर एक्स्ट्रा टाइम दो। तो प्लान करके चलो अपना पूरा एग्जाम, ये नहीं कि करे जा रहे कि इतने तो मैथ्स से करने ही करने आज, फिर वो बाकी सब छूट जाएगा। मैथ्स में एक्स्ट्रा आने का फायदा नहीं हुआ, फिर सब में थोड़ा बेटर बेटर करना है और फिर टाइम बस मैनेज करना है एग्जाम डे पे तो, और काम रहना है बस। एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग हमें एग्जाम से जो थोड़ा टाइम पहले अपनी पढ़ाई थोड़ी बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम से एक दिन पहले तो कुछ भी मत करो, क्योंकि मैंने पढ़ा था, सुना था कि जब हम एग्जाम से एक दिन पहले जो चीज पढ़ते हैं वो हम टेंशन में पढ़ते हैं, बहुत एंग्जाइटी होती है कि यार ये भी पढ़ लूं ये भी पढ़ लूं, तो वो चीज ना दिमाग में छप जाती है और बाकी सारी चीजें साइड लाइन हो जाती है। ठीक है, तो वो चीजें ओवरराइड कर जाती है वो मेमोरी आपकी। तो उससे क्या है ना, आपको फायदा तो होता है लेकिन नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है, आपकी पूरी बाकी की प्रिपरेशन चली जाती है। एंड एप्टीट्यूड स्पेशली मेमोरी बेस्ड, तो मैं उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकती, मैंने छोड़ दिया। एंड स्लीप, हाँ डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब तक सोते नहीं हो, मैं तो बहुत सोती थी क्योंकि मुझे रिलैक्स चाहिए, मेरा रिलैक्सेशन सोना था, तो मैं सोती थी तो ही मेरे को ठीक लगता था कि हाँ अब मैं कर सकती हूँ। सेकेंडली मेरे एक फैक्टर एक ही रह गया था कि मैंने नर्वसनेस मैंने बहुत थी मेरे अंदर, मैं बहुत नर्वस थी। इवन कि मैं इतना बताऊंगी, मैं वहां पे गिर सकती थी चक्कर खा के इस टाइम पे। लास्ट का हाफ एन आवर ऐसा था कि मेरे से पेंसिल नहीं चल रही थी, मैं ड्राइंग कर रही थी लास्ट के टाइम पे और मेरे से वो पेंसिल चल नहीं रही थी कि अब अगर मैं रुक गई तो फिर मैं दोबारा चला नहीं सकती, इतनी नर्वस मैं थी उस टाइम पे। एंड बाकी चीजों का मुझे इफेक्ट नहीं पड़ा कि मेरी जो प्लानिंग वगैरह थी वो मैंने इस तरह से की हुई थी। मैंने 15 डेज पहले मॉक टेस्ट दिए थे, दिन में ऑलमोस्ट मैं 2 मॉक टेस्ट देती थी, जिस वजह से क्या है ना कि मेरी प्रैक्टिस इतनी हो गई थी कि एप्टीट्यूड मैंने 50 क्वेश्चन जो है वो 25 मिनट्स में अटेम्प्ट कर लिए थे वहां पे, क्योंकि वही सेम रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। आपके टेस्ट में तो बहुत ज्यादा थे, मतलब आपके टेस्ट में एक क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने छोड़ दिया था, मेरा गलत हो गया था, एंड वो सेम क्वेश्चन जेई के टेस्ट पेपर में आया। वो तो थैंक गॉड मैंने उसको एनालाइज किया हुआ था, वो मेरे 4 नंबर्स वहां 4 मार्क्स वहां पे बच गए मेरे। तो वही चीज है, आपकी जो टेस्ट है लास्ट मोमेंट पे वो बहुत हेल्प करते हैं। उस चीज को जब आप करते हो ना तो अपनी आपकी प्लानिंग अपने आप बैठ जाती है कि मैथमेटिक्स में इतना करना है टाइम, उसमें एप्टीट्यूड में इतना देना है, ड्राइंग में इतना देना है, तो वो चीज करो। बाकी जो एग्जाम डे पे आपको सिर्फ फिर एक ही चीज रह जाएगी कि नर्वस नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। अगर पैनिक हो गए तो गया वहां पे गेम, अगर पैनिक हो भी रहा है ना तो मैंने क्या किया था, मैं टॉफी ले गई थी अंदर और मुझे एग्जाम हॉल में लेके जाने दी थी टॉफी। ठीक है, तो उससे क्या है, मैं रिलैक्स हो गई थी, मेरा मूड चॉकलेट खाने से रिलैक्स हो जाता है। कुछ भी ऐसी छोटी मोटी चीज वो लेके जाने देते हैं आपको एग्जाम में, पैनिक जिनको ज्यादा होता है तो वो आप लेके जा सकते हो, उसको यूज करो। और रही बात टेक्निक की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये सोचने मत बैठना कि अभी ये करूँ कि वो करूँ कि ये करूँ, उसका टाइम नहीं होता है, आपको बस करना होता है फटाफट। जो मतलब माइंड में हाथ ऐसे चलता है कि हाँ बस ये जो चीजें की हुई हैं वही करनी है, बस नया कुछ ट्राई मत करना। और एक हफ्ते पहले तो बिल्कुल भी नहीं, जो पढ़ा है बस वही पढ़ो। नया ट्राई करोगे तो भूल जाओगे पिछला भी, और जो अब पढ़ा है वो तो भूलना ही भूलना है। मैम मुझे लगता है कि आप कितना भी प्रिपरेशन कर लो, कितने भी टेस्ट सॉल्व कर लो, वो एग्जाम के दिन तो थोड़ा एंग्शियसनेस नर्वसनेस तो होना ही है, वो पक्का है। वो कम 100% रिमूव हो ही नहीं सकता मुझे लगता है। एटलीस्ट हाँ, आप उस एंजाइटी को नर्वसनेस को कम कर सकते हैं वो टाइम बेस्ड टेस्ट देके। जब आप घर पे टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं वो एंजाइटी और नर्वसनेस कम हो जाता है उस टाइम बेस्ड टेस्ट से, क्योंकि वो 100% रिमूव नहीं हो सकता। एटलीस्ट 10% तो रहता है वो एंजाइटी, थोड़ा सा नर्वसनेस। अब वो नॉर्मल भी है, एक्साइटमेंट थोड़ा होना भी चाहिए। और वही है मेरा कहता, मैं तो इंडो मोमेंट तक प्रिपरेशन कर रहा था, मतलब क्या बोलूं मैं 1 आवर तक पहले तक मैं एप्टीट्यूड का बुक ले गया था, मैं देख रहा था, फिर कहीं कहीं से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए
वो क्या होता है कि सबका बॉडी थोड़ा डिफरेंट रिएक्ट करता है। मेरा ऐसा है कि मैं इन द मोमेंट तक करता हूँ, जब तक कोई छीन लेना किताब तब तक मैं करते रहता हूँ। और जैसा स्नेहा ने कहा कि बिल्कुल सही कि पहले से स्ट्रैटेजी बना के जाओ कि पहले कौन सा सेक्शन सॉल्व करना है। जैसे मैथ थोड़ा टफ होता है, तो अगर स्टार्टिंग में अगर मैथ्स आप सॉल्व कीजिएगा तो कॉन्फिडेंस लेवल गिरने का काफी चांस होता है। फिर इसके बाद फिर आगे वो मिस रहता है ना दिमाग में, पीछे वो छूट गया वो क्वेश्चन या वो सॉल्व नहीं हुआ, वो बैक ऑफ द माइंड रहता ही रहता है। इससे मैंने क्या किया, पहले एप्टीट्यूड सॉल्व किया जिससे एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ गया। फिर मैंने मैथमेटिक्स सॉल्व किया, जब मैंने एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल आ गया, फिर लास्ट में मैंने स्केचिंग सॉल्व किया था। तो हाँ, वो पहले से डिसाइड करके जाना होता है कि पहले कौन सा सेक्शन, और जब हम लोग टाइम बेस्ड टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं तो उसी ऑर्डर में प्रैक्टिस करना होता है, तो वो ज्यादा फायदा पहुंचाता है। मैं ऐसे से एक चीज ऐसी बतानी है, कोई भी एक चीज तुम सोच लो जो तुम्हें लगी कि यार मतलब ये चीज स्पेशल है और ये चीज याद रहेगी। और ये भी बताना कि आगे जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनके लिए तुम्हें एक कोई छोटी सी स्पेशल टिप अगर बतानी हो तो वो भी बता सकते हो, ठीक है मैम? एक्चुअली मेरे लिए ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस मैंने जो पहले भी क्लासेस ज्वाइन की थी और की थी वो बीटेक के लिए की थी, तो उसमें एक प्रॉब्लम रहती थी कि हम टीचर से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाते, तो कोई और ही हेल्पर जो हमारी हेल्प कर रहा होता है और वो भी कभी कभी रिस्पॉन्स करता है। तो आपकी टीम का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, टीचर्स का पर्सनली आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। एंड जब भी हम लोग कोई मैसेज करते थे, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, वो लास्ट का टाइम था जब मैंने ज्वाइन किया था, उस टाइम पे हमें सच में सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी कि टीचर्स इमीडिएटली हमें बताएं कि हम क्या कर सकते हैं उस टाइम पे। तो वो चीज बहुत अच्छी थी जब हम टीचर्स के साथ खुद कनेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। तो ये मेरा बेस्ट पार्ट था जब हम खुद पर्सनली टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं वन ऑन वन। डाउट सेशंस जो आप रेगुलरली लेते थे तो उसने मेरे को बहुत हेल्प किया। ड्राइंग में मैंने जो आपके डाउट सेशंस में उसमें मैंने ज्यादा पढ़ाई की, क्योंकि आपने बाकी बच्चों की जब गलती ऑन स्क्रीन आपने इंडिकेट की ग्रुप में, तो वो मुझे काफी हेल्प किया उस चीज में। एंड सिमिलरली टेस्ट भी बहुत अच्छे थे। टेस्ट तो मतलब सीरियसली मैं टेस्ट की तो बहुत थैंकफुल हूँ, वो मेरे जो 4 मार्क्स उसने बचाए थे उसके लिए, क्योंकि एक मार्क्स से बहुत फर्क पड़ता है। एंड ये चीजें थी। एंड एक टिप जो मैं सबको बताना चाहूंगी, माइंड में ये सेट मत करो कि टॉपर होता है, नहीं, टॉपर 0 से स्टार्ट करता है। मैंने 0 से स्टार्ट किया था। एंड आप जब टीचर्स पे सही गाइडेंस के साथ सपोर्ट लेते हो, आप उन चीज़ों का सपोर्ट लेते हो, आपको मिलती है गाइडेंस मिलती है, और एक आपका जब डिटर्मिनेशन हो जाती है कि हाँ यही करना है, तो टॉप करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कर सकते हो, आप अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हो, अपने मनपसंद कॉलेजेस में जा सकते हो। तो प्री जज मत करना किसी भी चीज़ को, ना तो ड्राइंग को, ना एप्टीट्यूड को, और ना ही मैथ्स। किसी चीज़ को प्री जज मत करो, ट्राई करो फिर करो। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया कि ये डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट नहीं हो सकता, तुम्हारे लिए हो सकता है वो चेंज हो कुछ, ठीक है। तो हाँ, ये बातें हैं जो ध्यान में रखने वाली है हर किसी। मेरे को 3 चीजें डेफिनेटली याद रहेंगी। आप तीनों की स्किल्स, आप टीचर्स की स्किल्स, लाइव क्लासेस और कंटेंट। तो जो आप लोगों की स्किल्स है, फर्स्टली लाइव क्लासेस में बहुत मजा आता था। आपका ना प्रिपरेशन के दौरान आपका मन करना चाहिए क्लास में आने का, रोज लिंक ढूंढने का कि अच्छा लिंक आ गया, चलो चलो क्लास में चलते हैं, ठीक है। रोज जो मैम सिखा रही है उसको सीखने का, सुनने का मन करना चाहिए। पढ़ाने का स्टाइल बहुत मैटर करता है। और एक दोस्त वाला बॉन्ड बन जाना चाहिए कि अगर आपने छुट्टी ले ली, अगले दिन मैम पूछ रही है क्यों नहीं आए, तो ना डर ना लगे कुछ बताने में, आराम से आप रीजन बता पाओ, कॉन्वर्सेट कर पाओ, बस बेसिकली ये बात होती है। दूसरी बात ये होती है कि आप तीनों में ना बहुत यूनिक स्किल्स है। जैसे आपकी ना मुझे सबसे बेस्ट के लिए लगी थी कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग में क्या चीज आपको डिफरेंट बना सकती है। सब बच्चे ये ऐसा पेड़ बनाएंगे, ऐसा पेड़ बनाएंगे, लेकिन आपने फिगरेटिव पेड़ बनाना सिखाया, अलग स्केचिंग करना बेसिकली। और अरंजी सर बहुत मतलब शुरू से ना मतलब अपने भाई की तरह पढ़ा रहे हैं। उनका ये नहीं कि अच्छा मैं टीचर हूँ तुम पढ़ो, नहीं। आप उनसे कुछ पूछोगे ना वो 10 बार समझाएंगे। टीचर्स बोलते हैं समझा लो, कितनी बार पूछ लो, लेकिन वो डांट देते हैं, लेकिन अंजू सर एक्चुअली 100 बार समझाएंगे। और ऐश्वर्या मैम बहुत अच्छी थी, उनका हिस्ट्री पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था और उनको खुद नॉलेज बहुत है। ऑब्वियसली वो आर्किटेक्ट्स वाला पॉइंट बहुत अच्छा था, खुद नॉलेज बहुत होने की वजह से ना आप नॉलेज को बहुत ट्रांसफर कर पाते हो बच्चों को, और वो एक्चुअली स्टूडेंट्स पे ट्रांसफर होती है और हम एग्जाम में वो दिखा पाते हैं। तो वो टीचर्स में नॉलेज होना और स्किल्स ट्रांसफर करने की एबिलिटी बहुत मैटर करती है। और तीसरा कंटेंट बहुत हेल्पफुल था। नोट्स पहले मैंने बोला था बहुत स्ट्रक्चर्ड थे, उनमें बहुत
नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी, रैंडम नहीं थी, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में उनको प्लान किया था। टेस्ट डेली आते थे, डेली टेस्ट आते थे, तो उनको करने का प्रेशर भी रहता था कि अच्छे टेस्ट कर लो, एक अचीवमेंट भी लगती थी। और दूसरी बात है ड्राइंग बुक्स, आपने एक बुक बनाई थी जिसमें अगर आप वो सारी बुक के सारे स्केचेस बना लोगे तो एग्जाम में उससे सिमिलर ही आएगा। अगर आपने वो सारे बना लिए तो एग्जाम में जो आएगा आपको पता होगा इसमें मुझे क्या क्या बनाना है। तो कंटेंट बहुत स्ट्रक्चर्ड था बेसिकली। मैम मुझे तो पहली बात तो सारे जो फैकल्टी मेंबर्स है मैम एसएसएसी के, उनका जो टीचिंग करने का जो तरीका है मुझे वो बहुत पसंद आया मैम। जो आपने अनंजय सर वाली बात बोली कि उनके पास खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं होता, तो वो तो मुझे लगता है सही ही होगा, क्योंकि मैं ही उनको इतने सारे डाउट्स भेजता था, सर इसमें डाउट है, इसमें डाउट है, एंड डेफिनेटली जब भी डाउट्स भेजते थे मैम तो विद इन 5 मिनट्स वो आंसर करते थे। ऐसा कभी नहीं होता था कि अरे एक दिन हो गया अनंजय सर ने मैसेज देखा तक नहीं, और ऐसा तो कभी होता ही नहीं था। सो वो हमेशा डाउट सॉल्व करते थे, हमारे क्लासेस में हो या फिर घर पे हो, कभी भी हो। मैंने तो उनको रात में 11 बजे भी मैसेज किया था मैम, उन्होंने तब भी मेरा डाउट सॉल्व किया था। और दूसरी बात मैम, एक ऐश्वर्या मैम का मैं बोलना चाहूँगा, उन्होंने हमारे लिए मैम आर्किटेक्ट्स और शायद से कुछ हिस्ट्री का पार्ट लिया था। सो फेमस आर्किटेक्ट्स ये सब्जेक्ट उन्होंने इतना अच्छे से सिखाया था मैम, और उनकी जो टीचिंग करने की स्टाइल थी, लाइक पहले दिन वो जो सिखाती थी, दूसरे दिन भले ही आधा घंटा हो जाए, वो पहले दिन वाला पोर्शन रिवाइज करवाती थी और फिर नेक्स्ट पोर्शन पे जाती थी। और ये ऐसा हर हफ्ते के लिए कंटिन्यू होता था मैम। लाइक अभी 5 दिन हो गए, सो पूरे 5 दिन का जो भी हम सीख चुके हैं, सो वो पहले 1 घंटे में, भले क्लास 1.5-2 घंटे चले, तो पहले वो 1 घंटे में वो पूरा रिवाइज करवाएगी और फिर उसके बाद वो आगे का सिखाएंगे। सो वो मुझे बात बहुत अच्छी लगी मैम कि हमें खुद को रिवीजन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी हम क्लास में पढ़ते थे वही हमारा रिवाइज भी हो जाता, फिर हम नई चीज़ें भी पढ़ते थे। सो मुझे वो बहुत अच्छा लगा मैम। मुझे जो सारे टीचर्स की जो टेक्निक्स थी सिखाने की, वो बहुत अच्छी लगी। बट जो आपने ड्राइंग सिखाया था, मतलब बहुत लोगों को होता है कि नोज ड्रॉ करने नहीं आता है, लिप्स ड्रॉ करने नहीं आते, आईज ड्रॉ करने नहीं आते। मुझे भी बहुत दिक्कत होती है, मतलब मेरा ड्राइंग ठीक है, बट मुझे भी दिक्कत होती थी कि मैं कैसे ड्रॉ करूँ। जब आपने वो टेक्निक सिखाई कि नोज के लिए 3 सर्कल्स ड्रॉ करने और मतलब कैसे करना है, तो वो टेक्निक्स मुझे बहुत अच्छी लगी। और जब आप हमें होमवर्क देते थे, या मतलब ये पोर्ट्रेट बना के लाओ ऐसे, तो आप उसके बाद में जो हम आपको सेंड करते थे, तो हमारा ग्रुप डिस्कशन होता था। तो उस ग्रुप डिस्कशन का ये फायदा होता था कि हमें दूसरों की मिस्टेक समझ में आती थी। मतलब नहीं, अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो गलत हो जाएगा, मतलब नहीं क्या, ये दूसरों के मिस्टेक से ही हमें सीखने को मिलता था। मतलब ऐसे नहीं है कि जो मतलब हर गलती हम खुद ही हर गलती हम खुद ही करेंगे और खुद ही सीखेंगे। दूसरों के गलती से भी सीखना बहुत अच्छी चीज होती है। मतलब वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ग्रुप डिस्कशन होता था और उसमें बहुत ज्यादा जो मिस्टेक होती थी वो वहीं पे ही क्लियर हो जाती थी। और मुझे दूसरी बात होगी तो वो रिस्पांस, मतलब सैक इंस्टीट्यूट मतलब बेस्ट ही है। हमेशा मैं जब भी डाउट पूछती थी, जब भी कभी भी कॉल करती थी सर को, वो हमेशा रेडी थे। मतलब ऐसे नहीं कि कभी मैंने कॉल किया और उन्होंने रिसीव नहीं किया, ऐसे कभी हुआ नहीं है। और अगर ऐसे हुआ तो भी वो रिटर्न कॉल मुझे करते थे। तो वो रिस्पांस, मतलब बाकी इंस्टीट्यूट में होता है कि टीचर बहुत बिजी होते हैं और स्टूडेंट के लिए टाइम नहीं मिलता, तो नहीं क्या, मतलब वन साइड इंटरेक्शन होता है, मतलब स्टूडेंट से बात नहीं हो पाती। तो वो मुझे ऐसे कुछ लगा नहीं। रिस्पांस बहुत अच्छा था सैक इंस्टीट्यूट का। और आपकी ड्राइंग की टेक्निक्स भी बहुत अच्छी थी। और ऐश्वर्या मैम की जो हिस्ट्री पढ़ाने की टेक्निक थी वो भी बहुत अच्छी थी। और जो अनंजय सर भी पढ़ाते, जो 2D 3D विजुअलाइजेशन करना पड़ता था जो क्वेश्चंस में, वो सर मतलब 3D में दिखाते थे, तो वो समझने में बहुत अच्छा लगता था। तो अच्छा ही लगा वो सब कुछ। मैम अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे 3 चीजें काफी पसंद आई। पहले तो मुझे कभी भी मटेरियल के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा या कहीं बाहर भटकना नहीं पड़ा किसी वेबसाइट पे, क्योंकि इतनी सारे मटेरियल अपलोडेड है। मुझे तो वही बहुत ज्यादा लगती थी, इतना ही कर लो, मैं बस इसका 1/3 भी कर लो तो हो जाएगा। मटेरियल को लेकर मुझे कोई कहीं भी भटकना नहीं पड़ा। और दूसरी बात की यहाँ पे आर्किटेक्ट्स पढ़ाते हैं तो काफी अच्छा लगता है कि वो ना फ्यूचर की बातें भी बताते हैं, कॉलेज भी ये होगा या जब डिटेल नॉलेज होता है बीम स्ट्रक्चर्स के बारे में, वो फिर वो आर्किटेक्ट से ही पता लग सकता है, और तो कोई डिजाइन का फैकल्टी मेंबर तो कोई बता भी नहीं सकता है। और थर्ड, उनकी यहाँ के लोग काफी सॉफ्ट स्पोकन है, जैसे अनंजय सर, आप
ये एक सर काफी सॉफ्ट स्पोकन है, जनरली वो अनंजय सर का काफी अच्छा विजुअलाइजेशन सिखाते हैं, वो 3D मॉडल दिखाते हैं स्केचअप पे, जो हमें आगे करना है सब कुछ, तो फैसिनेटिंग लगता है देख के। और खासकर ऐश्वर्या मैम, उन्होंने तो बहुत ही मेहनत की, उनकी मेहनत तो हम लोग को दिखती ही दिखती, मतलब एक बार रिविजन नहीं, 2 बार नहीं, मल्टीपल्स रिविजन चलते थे। पता नहीं उन्होंने कितना फर्स्ट अटेम्प्ट में भी रिविजन करवाया था, सेकंड अटेम्प्ट में फिर से सारी चीज़ों को रिविजन करवाया था। तो ये तो बेस्ट डिसीजन है जो मैं कह सकता हूँ, जो अभी तक मैंने लिया है। बाकी वो ठीक। मैम थैंक यू, बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन था आपका, बहुत ज़्यादा बड़ा। एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो सपोर्ट ही चाहिए होती है, बताने को चाहिए होता है कि करना क्या है, तो वो सारा ही आपसे ही आया है और कहीं से नहीं आया, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम है। तो एक रिसोर्स मिला, वो पहली बार में इतना अच्छा मिला कि बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ सपोर्ट मिला, तो उसी से हो पाया, और कुछ नहीं कर पाता ये क्रैक। Thank you so much guys for watching this video. I hope that you liked the video. Also that this was the last episode from this series, which was the conversation with J Biak toppers. So most importantly, that I think that you learned so much from all these episodes and this conversation series. So thank you so much guys for watching. Also, if you are interested to join Sketch School of Art and Creativity and you are interested to get featured in the same way for 2024 toppers, if you really want to become the next topper of NATA and J Biak, also it will bring you more closer to earn really good while you become a professional. You become a professional architect. Getting into a good college really matters, guys. That's all I will say in this video. In some other videos I will explain you in detail that why it is important to get into a good architecture college, but अभी के लिए ये समझ लो कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी इफ़ यू आर इन ग्रेड 11th or 12th. Okay, so if you are interested to join, then what you have to do is open our website, which is www.sssinstitute.in, and वहाँ पे जो आपको स्क्रीन दिखेगी वहीं पे book a free demo class का बटन है. So click on book a free demo class while you will open our website, and then you can register for a free demo class in which you can judge and analyze yourself that how we are teaching the students, right? And also if you don't want to open our website and all that, then you can simply WhatsApp or call us on the number which is 8882908615. So note down this number, WhatsApp करो, कॉल करो, अभी करो. बुक अ फ्री डेमो क्लास लो, देखो कैसा है, और अगर अच्छा लगता है तो ज्वाइन करो, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो गाइज. इट्स हाई टाइम नाउ. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट वीडियो आने वाली है नाटा टॉपर विद रिद्धि गर्ग, एंड शी गॉट इनटू सेप्ट यूनिवर्सिटी. शी विल एक्सप्लेन हर जर्नी हाउ शी got into सेप्ट यूनिवर्सिटी in the next video. So subscribe कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो. Let's meet in the next video. Bye bye.